शुरू कर रहे हैं काइनेमेटिक्स। An object is said to be in a state of motion. In a state of motion. Yes, sir. In a state of motion. If its position changes. If its position changes. Yes, sir. If its position changes. Changes with respect to time. Changes with respect to time. Yes, sir. है ना? Yes, sir. In a given frame of reference. In a Yes. given frame of reference. Okay, sir. ध्यान रखना, ठीक है? Yes, sir. An object in motion an object in motion in a reference frame in a reference frame can be at rest can be at rest in another reference frame in another reference frame Yes, sir. reference frame। इन बातों का ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी बात है? देखिए आपके सामने है, an object is said to be in a state of motion, है ना? Yes, sir. Because state of motion कब? Yes, sir. कब? If its position changes with respect to time in a given frame of reference, ठीक? Yes. An object in motion in a reference frame can be at rest in another reference frame। ऐसा भी संभव है कि एक फ्रेम में कोई बॉडी मूव कर रहा है, दूसरे फ्रेम को Yes. देखने पर वो रेस्ट में पाया जाए, ऐसा Yes, हो sir. सकता है, ठीक है ना? Yes, sir. तो ये मैंने सिखा दिया। स्टेट ऑफ रेस्ट जानिए वो क्या है। ये तो मैंने सिखाया स्टेट ऑफ मोशन, ये मैंने सिखाया स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट क्या है? देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी an object is said to be in a state of rest if its position does not change। एक मिनट जी। Yes, sir. If its position does not change if its position does not change with respect to its surrounding। Okay, sir. with respect to its surrounding, ठीक है? Yes, और sir. अंत में हम तो यही कहेंगे कि रेस्ट एंड मोशन क्या है? ये रिलेटिव टर्म है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, है ना? Yes, रेस्ट sir. एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। हो सकता है कि Yes. कोई एक आपके लिए रेस्ट में हो, दूसरे के लिए मोशन में भी हो सकता है, ठीक है ना? Yes. अब देखिए एक चीज और जानिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ये Yes, जानिए sir. फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? द सेट ऑफ
the set of coordinate axes, the set of coordinate axes attached to a specified body, to a specified body relative to which, relative to which, relative to which the position of a particle, position of a particle is described, is described, is described, is known as, is known as frame of reference, is known as frame of reference, is known as frame of reference. ठीक है, तो एक्सप्रेस याद रहेगा नहीं वाला? Yes, sir. मैंने क्या सिखाया इसमें? देखिए, द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस अटैच्ड टू अ स्पेसिफाइड, ठीक है, Yes, attached sir. to a specified a body relative to which the position of the particle is described is known as frame of reference, जिसके रिस्पेक्ट में आप उस बॉडी की लोकेशन को जज कर सके, कहाँ पर है, किस तरह से, है Yes, ना? sir. टू एक्सेस, टू एक्सप्रेस बोलना चाहिए, टू एक्सप्रेस a physical quantity, to express a physical quantity, the reference frame, the reference frame from which, from which, from which it is observed, it is observed, should be specified, should be, should be specified, है ना? ये पता Yes, होना sir. चाहिए। मतलब किसी बॉडी के, देखिए, टू एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी रेफरेंस फ्रेम फ्रॉम विच इट इज ऑब्जर्व्ड शुड बी स्पेसिफाइड। अब किसी के बारे में आपको डिस्कस करना है, क्या है, क्यों है, कैसा है, ये बताना चाहिए कि आप किस फ्रेम से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये बताना चाहिए किस फ्रेम से आप उसको देख रहे हैं, राइट? Yes, sir. ये हो गया। उसके बाद देखिए, एक अगली बात है, उसको मैं बताऊं, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है। इफ द साइज, द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, if the size of an object is smaller than the distance moved, the distance moved by it, by it in a fixed, in a fixed interval of time, in a fixed interval of time, in a fixed interval of time, Time. the object is called, the object is called point object, the object is called point object, point object, ठीक है? Yes, sir. चलिए जल्दी करिए तो उसको। Yes, sir. Yes, sir. हो गया। सर पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है एक बार बता दीजिएगा वापस से। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कि अ, उसको समझो ऐसे, जैसे कोई डायमेंशन ना हो, कोई ये ना कह सके कितना लंबा, इतना चौड़ा, इतना ऊंचा है, ये सब उसके पास नहीं हो,
ठीक है। और ओके सर। दूसरी बात ये कि जैसे मान के चलिए कि हम लोग कभी कभार किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं, तो देखते हो कभी कभार कोई पॉइंट ज्यादा मूव करता है, कभी कभार कोई पॉइंट कम मूव करता है। यस तो सर। वैसा ऑब्जेक्ट पॉइंट के दायरे में नहीं आता। जैसे कि सपोज ये रोड होता है ना, ये वाला, अगर इक्वल टाइम में दिया जाए तो ये यहाँ से यहाँ चला है, यस। लेकिन ये पोर्शन यहाँ से यहीं आया। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। समझ गए? एक तो डायमेंशन ना हो, नंबर एक। और दूसरी बात, इफ द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन द डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस मूव्ड बाय इट इन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, ओके सर। जो मैंने अभी कहा, द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट। यस सर। देखिए अगला, नेक्स्ट, मोशन ऑफ मोशन ऑफ वन डायमेंशन, मोशन ऑफ, मोशन इन बोलना चाहिए, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन और स्ट्रेट लाइन, इसी को बोलते हैं वन डायमेंशन और स्ट्रेट लाइन। मोशन इन वन डायमेंशन और स्ट्रेट लाइन मोशन, या इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है ना? यस सर। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। एक ही चीज है, यस तो सर। इसको ठीक ठीक समझ लीजिए। एन ऑब्जेक्ट इज said to be said to be in one dimensional motion if only one of its यस। position coordinates coordinates changes with time, changes with time changes with time, है ना? यस सर। एक कोऑर्डिनेट बदले, दूसरा कोऑर्डिनेट ना बदले, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन या वन डायमेंशनल मोशन। जैसे एग्जांपल मैं दे दूं, अगर ये वाई एक्सिस है, अगर ये वाला वाई एक्सिस है और ये वाला एक्स एक्सिस है, तो देखो कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 0, सपोज कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2 0, सपोज कोऑर्डिनेट यहाँ पे 3 0, सपोज कोऑर्डिनेट यहाँ पे 4 0 एंड सो ऑन, है ना? तो इसमें एक बदला, जैसे देखो ये बदलता हुआ चला गया, देख रहे हो? यस। यस सर। लेकिन ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला नहीं बदला, सेम रह गया, ये सेम रह गया। बोलो हाँ या ना? यस सर। एक बदल गया, ऐसे को बोलते हैं हम लोग वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, मैंने लिख दिया है, इफ ओनली यस। वन ऑफ इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंजेस विद टाइम, एक बदले। ठीक, जैसे इसका एक बढ़िया एग्जांपल है वर्टिकल मोशन ग्रेविटी। एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। हो गया? अब देखिए, अब मैं सिखाने जा रहा हूँ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यस कुछ सर। जानिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानिए। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में ये सब थोड़ा थोड़ा, यस सर। कि जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल पार्टिकल करता है किसी दिए गए टाइम में, जो एक्चुअल पाथ है, टेढ़ा बैठा ऊपर नीचे सब काउंट करिए, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। और एक होता है जो ओनली पोजिशन कोऑर्डिनेट चेंज करने से मिल जाता है, जैसे जहां था और जहां पहुंचा तो स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए, तो उसको बोलेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यस सर। तो अब देखिए, द लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ
the length of actual path. The length of the actual path between initial initial and final initial and final positions of a particle in a given interval of time. In a given interval of time. In a given interval of time. Interval of time. Time is called distance covered. Is called distance covered. Is called distance covered by the particle. By the particle. ठीक है? Yes, sir. इसका ध्यान रखिएगा. मैंने क्या लिखा? The length of the actual path. याद रखना है. The length of the देखिए the length of the actual path between initial and final positions of a particle in a given interval of time is called distance. है ना? Yes, Distance sir. covered by the particle. यहाँ तक तो हो गया. उसके बाद देखिए distance is the actual path. Distance distance is the actual path. Distance is the actual path. Actual path length क्या है? Distance is the actual path length of the path. Of the path. It is the characteristic. It is the characteristic property of any path. Of any path. है ना? Yes, sir. Path is always associated. Path is always associated when we consider distance between हो गया. Distance is Yes. the actual path length. Distance is the actual path length of the path. It is the characteristic property of any path. Path is always associated when we consider distance between two positions. आप शॉर्ट में कहिए ना. देखिए तो पार्टिकल ऐसे करते हुए चला आया ऐसे, है ना? तो Yes. ए से गया बी, बी से गया सी, सी से आया डी, डी से आया ई, ई से आया, सब काउंट करना. जी एच कहने का मतलब कि ए बी सी डी ई एफ जी एच सब सब का सब क्या कहलाएगा? डिस्टेंस. ठीक है. Yes, sir. बस सर वो जो ग्राफ आप येलो में बनाया वो सर वो क्या डिपिक्ट करता है? जरूरी नहीं है. वो जरूरी नहीं है. बेकार का है. ये ओह, मैंने समझाने के लिए बताया. देखो एक 0 से 2 हुआ, 2 से कुछ आगे बढ़ा, लेकिन बाकी सब चीज कांस्टेंट रह गया. ओके सर. यस सर, हो गया. ठीक है. यस सर. अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टेंस. पहली बात ये क्या है? इट इज स्केलर क्वांटिटी. इट इज स्केलर क्वांटिटी. बोलो हाँ या ना. यस सर. हो गया. दूसरा, इट डिपेंड्स ऑन पाथ.
इट डिपेंड्स ऑन पाथ, सही बात है। यस सर। इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन पाथ हो गया तीसरा। थर्ड, ये कभी घटता नहीं है। इट नेवर रिड्यूसेस विथ टाइम, इट नेवर रिड्यूसेस विथ टाइम, रिड्यूसेस विथ टाइम, सही है। और चौथी प्रॉपर्टी है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल is always is always positive, is always positive and can never be negative or zero, and can never be, and can never be negative, and can never be negative or zero। ठीक है, ये डिस्टेंस की प्रॉपर्टी मैंने कुछ बता दी। ठीक है, उसके बाद मैं सिखाने जा रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट, यस सर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम, from the initial position, from the initial position to the final position, to the final position of the particle, of the particle is called displacement। याद रहेगा, पढ़ के देख लो। यस यस सर। देखिए, the shortest distance from the initial position to the final position of the particle is called displacement, है ना? यस सर। कैसे डिफाइन करते हैं ये इंपॉर्टेंट है बताना। देखिए, ग्राफ जरूर बनाइएगा और समझिएगा। तो इसमें क्या है, जैसे ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। कोई यस लोकेशन शो करा दीजिए यहाँ, और यस सर। ये पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल बी है। यस सर। यहाँ पर ये लोकेशन हो गया आर ए, और यहाँ पर ये लोकेशन हो गया आर बी, सही है। यस इसको सर। आप मिला दीजिए ए से लेकर बी तक। अब देखिए, कोऑर्डिनेट आप शो कर सकते हैं। जैसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए ऐसे लिख दीजिए पहले, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए कितना, x1 y1 z1, है ना। और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी ये हो गया x2 y2 z2, चलेगा। यस सर। मैंने मान लिया, तो ओ ए वेक्टर माने आर ए वेक्टर माने, इसको मैं ऐसा लिखूं, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। यस सर। सिमिलरली, सिमिलरली OB vector equal to RB vector will be equal to x2 I cap plus y2 j cap plus z2 k cap। Therefore, OB minus OA equal to RB minus RA। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज इन पोजिशन वेक्टर, यस सर। चेंज इन द पोजिशन वेक्टर, है ना, यस सर। चेंज इन द पोजिशन वेक्टर। और आप चाहें तो उसको ऐसे लिखेंगे, देखिए, यस डेल्टा सर। डेल्टा आर इक्वल टू आर बी माइनस आर ए, और ये हो गया x2 माइनस x1 along I कैप प्लस
y2 minus y1 along j cap plus z2 minus z1 along k cap, चलेगा? यस सर। तो इसी चीज को लोग डेल्टा आर को ऐसे बोल देते हैं, डेल्टा एक्स along आई कैप, डेल्टा वाई along जे कैप और डेल्टा जेड along के कैप। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यस सर। समझ गए? यस सर। तो इसको याद रखिएगा। तो पूछेगा मैग्नीट्यूड चाहिए, तो वेक्टर मैंने सिखाया था, आई यस के सर। आई के साथ जो है उसका स्क्वायर, जे के साथ जो है उसका स्क्वायर और के साथ जो है उसका स्क्वायर। यस सर। हो गया? जल्दी से इसको फिनिश करिए तो। यस सर। सर ये वाले ग्राफ में जेड एक्सिस भी है? जेड शो नहीं हुआ है, जेड कमिंग आउट फ्रॉम द पेज। ओके सर। सर ओ ए को बाई ए रिप्रेजेंट कर किए हैं। ओए को आर ए मैंने कहा है, आर ए। आर ए मैंने पोजिशन वेक्टर फॉर पॉइंट है। सर डेल्टा आर माइनस डेल्टा एक्स आई किए हैं। हाँ, जैसे कि ये जो कंडीशन है ना, यस सर। आर बी में से घटाओगे आर, जैसे कि बी में से घटाएंगे आप एक, तो एक्स टू माइनस एक्स वन होगा, यस सर। फिर वाई टू में से वाई वन घटेगा, फिर यस। जेड टू में से जेड वन घटेगा, क्योंकि आप आर बी में से आर ए को लेस कर रहे हैं तो यहाँ। सर वहाँ जो लास्ट में जो स्टेप है उसमें डेल्टा आर माइनस वो है पूरा। नहीं नहीं, इक्वल है ना वो, अच्छा लिखा इक्वल। दिख नहीं रहा। यस सर हो गया। इसका देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना? यस सर। ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये किसके क्या क्या पॉइंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हो गया? पहली बात इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दूसरी बात द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम in a given time interval may be पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है ना? यस सर। और डिस्टेंस में क्या था, पॉजिटिव होना जानता है, नहीं चलेगा तो जीरो रह जाएगा लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है? अच्छा सर एक डाउट था, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है? नहीं चले जीरो हो जाएगा। जैसे मान के चलिए कि अगर कोई पार्टिकल चल गया, वो तो खैर जीरो कभी नहीं होगा, लेकिन आप उसको रख दीजिए ना, अभी रख दीजिए, और वो अपने आप क्यों हिलेगा? अपने आप नहीं हिलेगा तो डिस्टेंस ट्रेवल तो कुछ होगा नहीं, जीरो हो जाएगा। यस सर। आप पिछले वाले पेज में तो फिर उसमें लिखे थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्टेंस में वो डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। डिस्टेंस कवर्ड लिखा हुआ है, अच्छा। मतलब चल चल जाने की बात है। ओके सर। थर्ड देखिए, थर्ड है द एक्चुअल डिस्टेंस, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल इन गिवन इंटरवल, इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम is always equal, is always equal to or greater than than the magnitude of
magnitude of the displacement and in no case and in no case it is less than the it is it is less than the magnitude of the displacement magnitude of the displacement मतलब कहने का मतलब कि ये हुआ कि डिस्टेंस जब भी होगा तो बड़ा या बराबर किससे होगा डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेसमेंट, कभी उससे छोटा उससे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हाँ कभी उससे छोटा हो नहीं सकता ठीक है यस सर। तो इन बातों का ध्यान रखना तो ये मैंने सिखा दिया फर्स्ट में क्या है याद रखिएगा देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है मैंने उसमें दिखाया ये एक वेक्टर क्वांटिटी है चलेगा यस सर। क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और एकदम पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है यस सर। ये हो गया द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन एट ए गिवन टाइम इंटरवल मे बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन गिवन interval of time is always equal to or greater than the magnitude of displacement डिस्टेंस हर हाल में डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है एंड इन नो केस इट इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कभी हो नहीं सकता कि वो कभी छोटा हो डिस्प्लेसमेंट कभी सॉरी डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो नहीं सकता यही हाँ कारण यस। से कहा गया डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है ना यस सर।